I think we should start now. Hello, everyone, and Assalamu alaikum. I'm Awais, and I will be hosting today's session. First of all, I would like to welcome you all on behalf of Dice Analytics for today's session, Career in Software Quality Assurance. I am glad to introduce our speaker today, Ms. Nahin Anjum, and he will be leading this session. Ms. Nahid is a highly motivated individual with practical knowledge in software engineering. She is a full stack SQAE automation tester with over 10 years experience. She has 6 years of experience with automation testing in Selenium, API Suite, WebDriver, and TestNG framework with both Java and Python. Moreover, she has 10 years of experience in manual testing of PKI domain, e-commerce, AI, cryptography, and iOS and Android apps. She also has good experience with Apache Jmeter for system and performance testing with reports and country-wise performance use cases as well. So over to Ms. Nahid. Thank you, Wes, first of all, to explain and introduce me with the people. So first, let me start my screen share. I think I don't need to be introduce myself, as Wes told me very detailed about myself. So once everyone can see my screen, just raise hand, like just tell me. Is it visible properly? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So the purpose and objective to discuss about the quality assurance and to start this webinar before the course to just let all of you know what we are gonna be deliver and what is basically QA, why this field is important, and what is the worth of this field with the IT industry and how we can proceed it in our as a career. So before discussing all those points, let me start step by step. I just want to know, is everyone comfortable with English communication, or I will be use mixed language, because I'm not sure in the attendees how many people are students, how many people are like from the which background. So if I'm using in both terms, is it okay for everyone? Hello? Okay, fine. Thank you. So quality assurance, basically QA exactly क्या 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 फील्ड है, इस फील्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, ये फील्ड क्यों हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड है. पहले मैं आपको QA का टर्म बता दूं. क्वालिटी जो बेसिकली है, इसका मकसद है लाइक एफिशिएंसी कह लें इसको आप, इफेक्टिवनेस कह लें किसी भी चीज़ की. अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में जाएं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस, लाइक देखा जाए तो ये बिजनेस वर्ल्ड है. यहाँ हर पर्सन किसी ना किसी चीज़ का बिजनेस कर रहा है. कुछ सॉफ्टवेयर में इन है, कुछ लाइक डिफरेंट थिंग्स के बिजनेस हो रहे हैं. ठीक है. और क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कस्टमर, क्लाइंट्स, इवन के एक आम एंड यूजर भी उसके ऊपर अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. इवन इफ वी सी आवर सेल्व्स, लाइक अगर हम खुद को देखें, इफ वी गो समवेयर, इफ वी वांट टू ट्राई समथिंग, लाइक फूड को ले लें, इवन वी प्रेफर द क्वालिटी फूड. बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें क्वालिटी का फूड खाना है, चाहे वो एक्सपेंस मैटर नहीं करता, चाहे वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए. लाइक वेयर एवर वी गो इन आवर रियल लाइफ, वी ऑलवेज प्रेफर द क्वालिटी rather than quantity, right? So quality अब कह ले कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी नीड एंड वांट्स ना सिर्फ हमें अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में फील होती है, इनफैक्ट इट इज़ यूजिंग एवरीवेयर. इफ वी सी इन अदर फील्ड्स, लाइक इवन आप अकाउंट्स में चले जाएं, आप किसी भी बिजनेस लाइक जैसे मार्केटिंग में देख लें, मोस्टली लोग जो मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स और परचेज में जा रहे होते हैं, या अपनी उनकी ब्रांडिंग को लेके बहुत ज़्यादा लेके चल रहे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा मेजर ये था कि हमारी जो क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और इसमें हमारा मोस्टली जो कॉम्पिटिटर्स में वो क्वालिटी. Sorry to interrupt, ma'am. Can you share? Can you press the slideshow button? It's quite not that much visible. Okay. So you need Zoom. Okay, fine. You want show slide. Basically, it's on
slide. Just a moment. Slideshow. Now is it fine? Is it okay? Ma'am, it's now it's fine. Yes. ओके फाइन, थैंक यू. सो जो बेसिकली हमारे पास क्वालिटी है, इसको आप अगर बेसिक टर्म में यूज़ करना चाहें तो ये जस्ट एक इफेक्टिवनेस है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट को कितनी एफिशिएंट है. फॉर एग्जांपल अगर आप क्यू मोबाइल और आईफोन को उठा लें, ठीक है, अब सेम मोबाइल दोनों जो है मोबाइल फोन्स है, बट इन दोनों का हम लोगों के अगर देखे जाए तो आईफोन को क्वालिटी में ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती है देन क्यू मोबाइल, बिकॉज बोथ आर यूजिंग फॉर कॉल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. बट यहाँ इनमें अगर कंपैरिजन आएगा तो इनके फीचर्स, इनके मॉड्यूल्स और इनकी जो है क्वालिटी के ऊपर जो है वो आता है, ठीक है. सो एश्योरेंस में हम लोगों ने बेसिकली चेक करना होता है कि कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे हम कहते हैं कि इस पर्सन की वारंटी दे दो कि बस ये रिलायबल पर्सन है, यू कैन गो विद दैट पर्सन इवन विद प्रोडक्ट. लाइक इफ वी सी different brands, J. Khadi, if we are checking in clothes, so our preferences goes to those brands, right? If we see like Endure है हमारा for like shoes का Bata है या services है, ये basically assurance के अंदर एक confidence होता है जो वो deliver करते हैं product के अंदर with the help of their quality department, with the help of their assured standards. और क्वालिटी इंश्योरेंस के अगर प्रोसेस को देखा जाए, ये वन डे एफर्ट नहीं होती, इट्स लाइक टेकिंग ईयर्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोसेस के लाइक जब रॉ चीज़ आती है स्टार्टिंग से, ये रॉ से इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है और चलते चलते उस सारे प्रोसेस से गुजरता है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लाइक अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्रॉपरली प्लानिंग फेज से लेके ये डेवलपमेंट फेज में जाता है और आफ्टर दैट इट मूव्स टू द implementation and then deliver to the customer and clients. उस डिलीवरेबल से पहले जो बीच में इन्वॉल्व होती है टीम, वो टेस्टिंग टीम होती है जिन्होंने इन सारे स्टैंडर्ड्स को इस प्रॉमिस के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करना होता है कि yes, this is the right product and this is the good product which we are going to deliver to the customer. So in shorter term, if we discuss about the QA is basically a field in which we are just making sure the thing, the deliverable, the product, either it is related to mobile, web or whatever the project, we are delivering the things without mistakes, without any problems, and with this confidence, yes, this is perfectly working and we can deliver to the customer and clients and we can launch it. So ये basically QA का एक basic अगर आप देख लें definition है, there are a lot of bookish definition, but if you understand in terms of practical knowledge, we are just making sure yes, this is the good product and which meets the all standards and we are going to deliver it. So इस चीज को mistakeless बनाने के लिए हमें QA और software testing की field की जरूरत पड़ती है. Same like if you go to the airlines, if you go to the aviation, you can see the planes. Like अगर हम flights की बात करें, हम बताते हैं mostly Emirates की flights बहुत अच्छी हैं, Fly Dubai is little bit okay, BIA a little bit variable. So how we could know these kind of things कि ये वाले जो airlines है वो best है, Qatar Airlines इस तरह से है. So we basically trust on them because they highlighted the standards and quality and they are delivering the best things. So in this way we are helping in the market and make our worth in the market as a competitive environment. So this is the simple definition as I try to be guide you in terms of examples. So if we go to the next our next slide, which is related to like कि हमें सॉफ्टवेयर फील्ड की ज़रूरत क्यों है, वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अंदर करियर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेशली बैचलर स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग दी स्टडीज़ दे आर नॉट नोइंग हम कहाँ जाएं, किस फील्ड में जाएं, बिकॉज इन 4 years कोर्स वी स्टडीड एवरीथिंग. प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और मोस्टली बुकिश नॉलेज है और प्रोग्रामिंग के जो है कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है. सो दे स्टडीड 4 years and they studied everything. Like they studied the software engineering subjects, they studied the computer science subjects, data structure, web engineering, whatever the modules and the course have, they studied everything, but they are not knowing in IT industry what kind of fields are important. बेसिकली इस पूरे SDLC में सारी फील्ड्स की अपनी अपनी वर्थ है. अगर आप कहें कि नहीं QA में चले जाएं, डेवलपमेंट में ना जाए, नो, ये सब फील्ड्स एक तरह से एक चेन रूल में चल रही है. लाइक आप ये नहीं कह सकते
कि हमारी जो है मतलब QA ज़्यादा बेस्ट है, डेवलपर बेस्ट नहीं है, डिज़ाइनर अच्छा नहीं है. नो, एवरी फील्ड इज वर्दी एंड यू कैन से कोई एक पर्सन सब काम नहीं कर सकता. ये प्रोसेस और सिस्टमैटिक वे और अप्रोच के साथ चलना पड़ता है. इफ़ यू से एक इंडस्ट्री के अंदर हम लोग किस तरह से इन सब फील्ड्स की, वट एवर यू स्टडी इन यूनिवर्सिटी लेवल, इन बैचलर्स लेवल, इवन BTech, एवरी फील्ड हैज़ देयर वर्थ. एंड ये डिपेंड करता है कि आप किस इंटरेस्ट के साथ किस फील्ड में एंटर होना चाह रहे हैं. बट करियर में मोस्टली लोग अपनी स्पेसिफिक फील्ड को चूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक ट्राई टू बी गो कि वी वांट टू बी गुड वेब डेवलपर, दे मूव टू द वेब डेवलपमेंट. सम पीपल डिसाइडेड टू गो टू मोबाइल ऐप. अब मोबाइल ऐप में भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि iOS के डिपार्टमेंट में जाना है या एंड्रॉयड पे जाना है, क्योंकि वहाँ 2 एनवायरनमेंट्स आते हैं. ठीक है, सो यू कैन से कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है. ये उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC का एक पार्ट है, जिसके बिना लाइक अगर ये सेम उसी तरह जैसे हम कहें हमारी बॉडी है, अल्लाह ताला ने इसको जिस तरह से डेवलप किया है, राइट. हम कहे जी आंख इंपॉर्टेंट है, नो, नाक भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इवन हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे हर पार्ट अपना अपना एक रोल अदा कर रहा है. सो इफ यू लिव इन लाइफ एंड इफ यू वांट टू सर्वाइव, डेफिनेटली यू नीड टू बी फॉलो दैट प्रोसेस. आप किसी भी चीज़ के बगैर नहीं रह सकते. सेम लाइक एज एयर इज इंपॉर्टेंट, सेम लाइक वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो IT फील्ड के अंदर जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, अगर हम इसको स्किप करते हैं, दैट मे बी गोज टू द लाइक डिफरेंट लॉस और मे बी डिफरेंट डिलीवरेबल्स डिलेज. सो इस चीज़ के लिए इन्होंने इस फील्ड को इम्पोर्टेंस दी है कि ये भी उस प्रोसेस का पार्ट है और हम उस प्रोसेस के पार्ट को में से इसको रिमूव नहीं कर सकते. तो इस फील्ड के ऐड करने से पहले लाइक जब सॉफ्टवेयर QA इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लोग मोस्टली डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग एरिया खुद ही कवर करते थे. उससे कुछ लॉस होते थे प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिलीवरेबल्स में कस्टमर्स कंप्लेंट्स करते थे, जिससे प्रोजेक्ट की जो थी वर्थ गिरती थी और क्लाइंट का ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट लूज होता था. सो इस फील्ड को इम्पोर्टेंस इस वजह से इस IT के अंदर SDLC में ऐड की है कि इसके बिना आगे आप डिलीवरेबल नहीं दे सकते, बिकॉज इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट हाउ यू कैन पुश द थिंग्स टू द कस्टमर एंड क्लाइंट. तो इस फील्ड के ऐड होने से सबसे पहले जो उनका सेव हुआ है, टाइम और मनी सेव हुआ है. हाउ इट सेव टाइम एंड मनी. इफ क्लाइंट, अगर आपको एक चीज़ डेवलप की है, आप उसको डिलीवर करना चाह रहे हो और डिलीवर से पहले अगर वो कंप्लीट टेस्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस के अंदर होते हो QA में, रात से जब स्टार्ट से एक चीज़ बनती है तो वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है और स्टैंडर्ड सेट कर लिए जाते हैं कि हम जो फीचर या मॉड्यूल देने जा रहे हैं, इस फीचर और मॉड्यूल में हम लोग को क्या क्या उसके अंदर रिस्क आ सकते हैं. सेम लाइक इफ वी आर प्लानिंग समथिंग, वी फर्स्ट राइट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द थिंग कि हमारी उस प्लानिंग में हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें क्या लॉस हो सकते हैं और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेव मनी एंड टाइम, विच इज़ द बिगेस्ट component and asset of this like era. And second thing is safety. You became secure if you deliver something and that is quality delivered, definitely your customer and clients will be trust on you, and the reputation of company and the team became more good, and they definitely you can get a lot of projects after that. सो इसी तरह क्लाइंट्स की जो डेडलाइंस हैं, जो उनकी डिमांड्स है, वो फुलफिल होती है और इसके अलावा आपका मार्केट में एक नाम स्टेबल हो जाता है. इन शॉर्टर टर्म अगर हम देखें, एक तरफ हमारा कस्टमर है, दूसरी तरफ सर्विस प्रोवाइडर है, राइट. कस्टमर वो पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो चाह रहा है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनानी है. सर्विस प्रोवाइडर कोई फ्रीलांसर भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई टीम भी हो सकती है, कोई छोटे लेवल की स्टार्टअप कंपनी भी हो सकती है. दे जस्ट वांट टू डिलीवर दिस सर्विसेज टू द कस्टमर. Why? क्योंकि कस्टमर वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, दे नीड द रेपुटेशन, दे नीड द नेम, दे नीड द वैल्यू इन द मार्केट, एंड डेफिनेटली कस्टमर इज द इन्वेस्टर एंड ही नीड्स टू बी मूव and grow their business. So in this way the process work out. So next thing is इसके बेनिफिट्स क्या है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर. लाइक जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इससे आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. लाइक अगर आप एक चीज़ डिलीवर कर रहे हो और उसके अंदर कस्टमर की, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं या वो इश्यूज रिपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली वो आपके बजट को कट करेंगे कि वी डिलीवर द रिक्वायरमेंट्स बट यू डिडंट डू गुड. सो डेफिनेटली इससे उनकी अनोयंस और उनका जो है अमाउंट जो है वो एक्सपेंस से रिड्यूस होगी. दूसरा, अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो सेकंड बेनिफिट है वो ये कि ये रिड्यूस करता है आपकी जो रिस्क है, रिस्क को रिड्यूस करता है.
बजट लॉस्ट को रिड्यूस करता है। और थर्ड थिंग है उसमें आ जाती है कि आप गारंटी के साथ इसको परफॉर्मेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हो। और इसमें कस्टमर की अलावा जो आपका सर्विस प्रोवाइडर जो कस्टमर को या क्लाइंट्स को दे रहा होता है, उससे यूजर्स की जितनी ज़्यादा कंटेंटमेंट आएगी, डेफिनेटली देयर बिजनेस विल ग्रो। सो दीज आर दी बेसिक benefits of our testing in industry. And here I would like to explain this thing. Increase ROI. ROI is basically the return of investment, right? Like if you involve the QA process, it will reduce the time, definitely save the money, and a part of that, the investor who is investing on the product, his returns and the benefits will definitely increase, and that indirectly or directly impacts to your services, and definitely you got some sort of appraisals, some sort of bonuses in this way if you provide the good quality, cover the all test coverages and accuracy. So these are the fewer benefits. There are a lot, but I just mentioned the top high and for one. Now, what is SDLC? Before discuss the QA in other things, we need to be understand basically SDLC क्या चीज़ है. जैसे नॉर्मली हमारे बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में फेजेस होती थी प्लांट्स की, डेफिनेटली हम एक फेज और प्रोसेस से गुजरते हैं. इसी तरह हर सॉफ्टवेयर के डेवलप करने के भी कुछ फेजेस हैं. इन फेजेस को इसको कह लें कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच है. इस अप्रोच को यूज़ किए बिना आप अपने जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते. इस अप्रोच का बेसिकली आप कह लें कि SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? इसमें हमारी सबसे पहला पार्ट जो आता है वो प्लानिंग है. इट इज सेम लाइक इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आइदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, यू हैव टू बी प्लान समथिंग. कि आप एक प्लानिंग फेज में आते हो कि आपके पास एक आइडिया है और आप उस आइडिया को मार्केट में लाना चाह रहे हो और देखना चाह रहे हो कि मेरे इस आइडिया की क्या वर्थ है. जैसे आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखें, मोस्टली लोग यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल पर डिफरेंट सर्विसेज देने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ अपने लर्निंग के लेक्चर्स दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अब यूट्यूब का जो आइडिया, उनके चैनल बनाना, उसके ऊपर प्लानिंग की है, डेफिनेटली वो एक पर्सन का काम नहीं होगा, वो पूरी टीम होती है पीछे. अगर आप एक लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करें, जैसे डाइस एनालिटिक्स है, इनकी ट्रेनिंग्स का प्रोसेस है. सो डेफिनेटली इफ दे वांट टू बी स्टार्ट सम ट्रेनिंग और सब वेबिनार्स, दे नीड टू बी बिल्ड अ प्रॉपर प्लान. इस प्लान के अंदर एक कंप्लीट जो है नॉलेज बेस होती है, उसकी सब डिटेल्स होती है कि हम ये चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस प्रोसेस में हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा बजट कितना होगा, और उसमें हमें कितने कितने टीममेट्स चाहिए होंगे. क्योंकि इट इज़ नॉट एफर्ट ऑफ वन पर्सन, दिस इज बेसिकली अ टीम एफर्ट. सो प्लानिंग के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जाती है. जैसे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल ऐप बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, अब उस मोबाइल ऐप को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी प्लानिंग होगी कि वो ऐप क्या होगी, ऐप का पर्पस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो ऐप किस तरह की सर्विस कस्टमर या क्लाइंट्स को देगी, उस ऐप के अंदर कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी. डेफिनेटली अगर वो डेवलपमेंट, आपको डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे. डेवलपमेंट में भी आगे फर्दर आ जाता है कि आपको डिजाइनर चाहिए होगा, उसका पूरा डिजाइन बनाने के लिए, उसका मॉकअप्स बनाने के लिए डेवलपर भी चाहिए. ठीक है, जो उसकी फ्रंट एंड की और बैक एंड की सर्विसेज को देखे. तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्लानिंग में बजट, टीम और रिस्क एंड इवन कंप्लीट प्रोजेक्ट प्लान डिस्कस कर लिया जाता है. उसके बाद सेकंड फेज में इसके आ जाता है एनालिसिस. ये एनालिसिस के अंदर वो फिर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक कस्टमर के साथ डिस्कशन में वो नोट डाउन करवाते हैं. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मुझे इस तरह की डेवलपमेंट चाहिए, मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है और मुझे मेरी ये डिमांड है. वो एग्जांपल दे देता है कि आप फॉर एग्जांपल iva.com को देख लें या किसी भी वेबसाइट को वो दे सकते हैं. जैसे हमारे द्राज है, ई कॉमर्स की डिफरेंट साइट्स हैं. इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंग, तो वो एनालिसिस फेज में कंप्लीट उनकी रिक्वायरमेंट्स को एलिसिएट किया जाता है. ठीक है, लाइक रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की जाती है और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर वर्कआउट किया जाता है. फिर थर्ड फेज में आ जाते हैं डिजाइन. ठीक है, डिजाइन फेज में इसमें आप लोगों में से अगर कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा UML और DFD डायग्राम्स. ठीक है, और ये सारा वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है जिसमें बताना होता है कि आप जो अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इसकी डिज़ाइन किस तरह का होगा, क्या इसके मॉड्यूल्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, इसके जो है फ्रंट एंड कैसा होगा, कलर कम्बिनेशंस क्या होंगे,
कौन सा फ़ोन, फैमिलीज़ किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, वो सारी की सारी डिज़ाइन फेज़ में आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेन पार्ट शुरू हो जाता है डेवलपमेंट का, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये तीनों फेजेस जब कंप्लीट हो जाते हैं, अब इस फेज़ में, प्लानिंग फेज़ में बेसिकली ज़्यादातर कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। दे हैव नो टेक्निकल बैकग्राउंड, बट दे हैव गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, दे आर गुड इन लाइक, आप कह लें कि MBA स्टूडेंट्स और MBA पीपल्स, और मे बी the other people who are related to business, they added in that part and they get the requirements and they deliver to the team, ठीक है। और इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हमारे पास डेवलपर्स आते हैं, जिसमें आपके पास फ्रंट एंड के डेवलपर, बैक एंड के डेवलपर, डेटाबेस की मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स. So this area is totally implementation, and that is important part where the application or the project or product gonna be start to working on it. इन तीनों फेजेस से गुजरने के बाद आफ्टर दैट ये 4 स्टेप पे जाके आपकी टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है, और इस टेस्टिंग इन्वॉल्वमेंट में आपका बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर इस पार्ट में QA की ज़रूरत पेश आती है। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये SDLC का पार्ट क्यों है, और इन पांचों पार्ट्स को हम एक साथ लेके चलते हैं, और ये प्रोसेस का पार्ट है। और इसमें से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर हम रिमूव करते हैं और डायरेक्ट इसको डिलीवर कर देते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ 50-50 माइट बी प्रोडक्ट गोज, क्योंकि जो डेवलपमेंट टीम होती है, they just started to complete their implementation and they just do minimal testing, they do not do deep dive of testing. लेकिन इस testing and testing team जो है वो बेसिकली डिफरेंट लेवल्स की टेस्टिंग करते हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टिंग आ जाती है, आपकी इंटीग्रेशन आ जाती है, आपकी यूनिट टेस्टिंग, और आपकी डिफरेंट लाइक अल्फा बीटा, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी डेफिनेटली हैज अ स्पेसिफिक कोर्स ऑन दिस डिपार्टमेंट. सो आफ्टर दैट इस प्रोसेस के बाद वो चीज़ जो है मेंटेनेंस के लिए जाती है. लाइक अगर डिलीवर हो गई, कस्टमर के उसको डेमोस दे दिए, उसको सेटिस्फाई कर दें. इफ दे नीड टू चेंज समथिंग, दे नीड टू लाइक यस दिस इज गुड एंड वी नीड टू डू दिस चेंज एंड दैट चेंज. यहाँ फिर मेंटेनेंस के लिए एक अलग से डिप्लॉयमेंट के बाद उनकी अलग से चीज़ों को देखा जाता है. सो ये हमारा कंप्लीट जो है SDLC का फ्लो है, और इस फ्लो के अंदर जो है टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती है, और इस दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कांट इमिटेट फ्रॉम दिस प्रोसेस. सो माय नेक्स्ट थिंग इज लाइक अभी थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेते हैं कि IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज कैसे चल रही हैं. बिकॉज एट यूनिवर्सिटी लेवल वी जस्ट नो the whole knowledge of bookish like ये things हैं, बट हमें प्रैक्टिकली नहीं आइडिया कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रही हैं. सॉफ्टवेयर हाउसेज में कैसे काम हो रहा है, किस तरह से सारे रोल्स एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, किस रोल का किस हायरार्की से साथ क्या लिंक है. सो दिस इज कॉल्ड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किस तरह से IT इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं. सो सबसे पहले आपको पता है डेफिनेटली द पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस एंड हु इज रनिंग द कंपनी, वो CEO लेवल के पर्सन, ठीक है. उसमें वो एक सोलो भी हो सकता है और उसमें पार्टनरशिप्स भी हो सकते हैं, ठीक है. तो CEO जो है वो डेफिनेटली उन्होंने अपने नीचे मेन 3 कोर पर्संस रखे होते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही फ्लो हर ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर जो बिगेस्ट लेवल की एस्टैब्लिश कंपनी है, दे यूज़ दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है जो CEO पर्सन है, दैट इज़ बेसिकली द पर्सन हु इज़ रनिंग द कंपनी, हु इज़ रनिंग द बिजनेस एंड हु इज़ टेकिंग द क्लाइंट्स. जो नेक्स्ट आता है CFO, दिस इज बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है. इसके बाद चीफ फंक्शनल ऑफिसर होता है, जिसका काम क्या होता है, वो CEO के अंडर उसकी हायरार्की स्टार्ट होती है, और वो इसने सब के सब जो चीज़ें प्रोजेक्ट की बेस है या प्रोडक्ट बेस है, उनको लेके आगे अपने फर्दर टीममेट्स को मूव ऑन करना होता है. और इसने सारे के सारे उस चीज़ को जो फंक्शंस है उस बिजनेस के, जो कोर कंपोनेंट्स उनको देखना होता है. जो CTO है वो बेसिकली टेक्निकल ऑफिसर होता है, जिसमें उसके टेक्निकल पार्ट को उसमें से अलग करना होता है कि लाइक क्या हमारा फंक्शनल एरिया है, क्या हमारा नॉन फंक्शनल एरिया, क्या हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या नॉन टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ों की इंप्रूवमेंट की जा सकती है. दिस पर्सन इज लाइक वर्किंग ऑन दैट थिंग. और जो COO होता है वो होता है ऑपरेशनल ऑफिसर, हु बेसिकली आफ्टर negotiate with both, who is like implementing those components, those parameters among the other team members, among the other roles, ठीक है. अब मैनेजर्स में आ जाते हैं ज़्यादातर लीड पोजीशन के लोग. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि IT के अंदर अगर एक डेवलपमेंट टीम है, उसमें 10 से 15 लोग कंसिस्ट हैं टोटल. फॉर एग्जाम्पल एक टीम है, उसमें 15 डेवलपर्स हैं. उन 15 डेवलपर्स को जो लेके चलेगा, उनका एक लीड लेके चलेगा. एंड लीड और मैनेजर में भी
10+ years of experience person who has enough practical and organization experience, जिसका डेवलपमेंट के अंदर बहुत हाई लेवल का एक्सपीरियंस होता है, जो अपनी टीम को एक हायरार्की के साथ और एक फ्लो के साथ लेके चल रहा होता है. ठीक है, ये सेम उसी तरह है जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एक CR होता था और जिसमें अपनी ग्रुप मेंबर्स बनाते थे और टीम वाइज प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते थे. सो बिकॉज एक CEO लेवल का पर्सन है, जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास एक ही प्रोजेक्ट हो. They maybe have 100 of projects. So this person deliver to these 3 people and these 3 people make the teams. और टीम्स के ऊपर एक मैनेजर होता है, मैनेजर और लीड, जिन्होंने अपनी अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, उनके साथ डेली फॉलोअप लेना होता है और अपने डेली बेसिस टास्क को लेके चलना होता है. सो लीड पोजीशन बेसिकली लुक फॉर दोस थिंग, और वो डेवलपर्स के भी लीड होते हैं, टेस्टर के भी लीड होते हैं, इवन मार्केटिंग में देख लो उनका भी कोई ना कोई लीड होता है. अगर आप अकाउंट्स वाले देख ले जो HRs वगैरह हैं, उनके भी ऊपर लीड्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है HR और रिक्रूटर. ये रोल जो है इसका बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है ना, इसका काम है कि जितनी भी पोस्ट चाहिए, लाइक जो लोगों की हायरिंग करनी है, इन्होंने इस प्रोसेस को देखना होता है. HR बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज अ सेपरेट फील्ड. इसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंपनी रन हो रही है उसकी सारी चीज़ों को देखना होता है. लीव्स का सिस्टम, मेडिकल का सिस्टम और एम्प्लॉयज़ की जितनी भी उनको जो राइट्स देने हैं एज पर रोल, एज पर डेजिग्नेशन, वो इस पर्सन ने देखना होता है. और जो रिक्रूटर टीम होती है, उन्होंने बेसिकली जो भी नई पोजीशन ओपन करनी है या हायरिंग ओपन हो रही है, उन्होंने सोशल मीडिया पे या डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू पोजीशन ओपन करके उसकी डिटेल्स और बैनर्स और एड्स वगैरह लगानी होती है, जिसकी बेस पे वो कैंडिडेट्स को HR तक लेके आते हैं और HR ने फिर आगे इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह देखना होता है. दिस इज आल्सो एग्जिस्ट इन IT सॉफ्टवेयर हाउसेज. एंड आफ्टर दैट अकाउंटेंट, दिस इज वेरी क्लियर, लाइक इसमें ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBAs के या फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़्यादा लोग हायर होते हैं और उन लोगों ने बेसिकली बजट को देखना होता है. लाइक अगर वो जो सैलरीज का सिस्टम है, जो पे रोल का सिस्टम है, वो सारे का सारा उस पर्सन ने देखना. मोस्ट ऑफ द कंपनीज, लाइक जैसे मैंने बताया, ये एस्टैब्लिश कंपनी में ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. कुछ जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनमें मोस्टली ये सारे काम जो है वो HR के हवाले भी कर देते हैं. नेक्स्ट मैंने एक वर्ड लिखा है BA, दैट इज बेसिकली अ बिजनेस एनालिस्ट. दिस पर्सन इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट. जब क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करनी होती है, बिजनेस एनालिस्ट ने सारे के सारे SRS डॉक्यूमेंट्स, SRS बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उनको देखना होता है, और BRS देखने होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स. इस पर्सन ने सब रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करके आगे जो मैनेजर्स लेवल के लोग हैं उनको हैंड ओवर करनी होती है. दिस पर्सन इज बेसिकली इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट क्लाइंट्स. लाइक अगर एक प्रोजेक्ट A है, एक B है और एक C है, इसके अंदर भी डिफरेंट मल्टीपल लोग हो सकते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक पर्सन को कनेक्ट किया हुआ, दूसरे पे दूसरे को किया हुआ, इन्होंने फिर आगे अपनी अपनी टीम्स के साथ कनेक्टिविटी करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो डिलीवर करनी होती है रिक्वायरमेंट्स वगैरह. देन एक डिज़ाइनर फील्ड है. उस फील्ड का बेसिकली जो पर्पस है, सॉरी ज़्यादा आगे चले गई. जो डिज़ाइनर फील्ड है, इस फील्ड के अंदर बेसिकली हमारे पास टेक्निकल नॉलेज, अब टेक्निकल नॉलेज अभी तक आपने जो जितनी चीज़ें देखी हैं, इनमें मैनेजर और लीड्स के पास टेक्निकल नॉलेज, प्रोग्रामिंग नॉलेज और यू कैन से उनकी हाई प्रोफाइलिंग होती है. ठीक है, HR के लिए आपका डेवलपमेंट होना ज़रूरी नहीं है, अकाउंटेंट के लिए आपका डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको लिटिल बिट सॉफ्टवेयर्स की टेक का आइडिया होना चाहिए. जैसे बिजनेस एनालिस्ट है, दे विल बी डेफिनेटली हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर. लाइक जैसे हर इंसान को पता है, मैंने अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, यू हैव टू बी यूज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, राइट. एंड इफ यू वांट टू बी डिलीवर समथिंग, तो उसके लिए किस तरह से आपने किस किस सॉफ्टवेयर पे आपकी जो है कमांड्स होनी चाहिए. अब डिज़ाइनर जो है ये टोटली क्रिएटिव फील्ड है. अब इस फील्ड में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनका क्रिएटिविटी की तरफ माइंड है, जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट ना कोडिंग से है, जो जस्ट लाइक फ्रंट एंड की जो मॉकअप्स वगैरह, मॉकअप्स बेसिकली एक डमी डिज़ाइन होता है जो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एक डिज़ाइनर बना के देता है. जैसे लोगो डिज़ाइन हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट, उसका होम पेज बनाना है. आपको पता है वेबसाइट जो है वो एक पेज पे नहीं, वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है. उसकी मल्टीपल थिंग्स होती हैं. होम पेज अलग होता है, सर्च पेज अलग होता है, फूटर अलग होता है, बैनर, नेविगेशन. सो ये सारी की सारी चीज़ें जब रिक्वायरमेंट्स डन हो गई, सब कुछ हो गया, बिजनेस एनालिस्ट ने टीम लीड्स को दे दिया, टीम लीड्स ने अगर डिलीवर कर दिया तो सबसे पहले जाता है डिज़ाइनर के पास. और डिज़ाइनर वो पर्सन है जिसने
अपने डिज़ाइंस को उसी तरह बनाना है जिस तरह प्रोजेक्ट के कस्टमर या क्लाइंट ने रिक्वायर किया है. अगर उसने बोला है मुझे लोगो इस तरह का चाहिए, दैट पर्सन विल बी डू लाइक दैट. आफ्टर कंप्लीट दिस वन, फिर हमारे पास डेवलपमेंट के पास वो चीज़ें जाती हैं. ठीक है, अब डेवलपर्स के अंदर भी आगे हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं. एक हो गया फ्रंट एंड डेवलपर, एक हो गया बैक एंड डेवलपर. अब डेवलपर क्या करता है, जो अब डिज़ाइनर मोस्टली टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप है, बिफोर विंडोज़ कोरल ड्रा यूज़ हो रहा था, एंड एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है. देयर आर लॉट ऑफ tools which designer use to develop the design and pages. और वो pages depend करता है कि उसने किस resolution screen के लिए करनी है. अगर वेबसाइट है तो डेफिनेटली वो वेबसाइट के रिलेटेड पेजेस बनाएगा. अगर मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप के रिलेटेड बनाएगा, तो उसमें रेजोल्यूशन स्क्रीन्स को भी मेंटेन करेगा. अब यहाँ डेवलपर्स के अंदर जब डिजाइनर ने अपनी चीजें कंप्लीट कर ली तो वो फिर डेवलपमेंट टीम के पास मूव कर देते हैं. अब डेवलपर के अंदर भी दो तरह की कैटेगरीज है कि आपके पास फ्रंट एंड की एक्सपर्टीज हैं या बैक एंड की एक्सपर्टीज हैं. अब फ्रंट एंड की एक्सपर्टीज वाले पर्सन के पास बेसिकली HTML, CSS, Bootstrap, this kind of information, like उसके पास उसकी इस स्पेसिफिक फील्ड की स्किल सेट होना ज़रूरी है, जो कि आप नॉर्मली सब मार्केट में देख रहे होंगे कि बहुत सारे न्यू टूल्स आए हैं जो फ्रंट एंड वाले यूज़ कर. बैक एंड के पास बेसिकली कोई कोर प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए. यू नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट, एंड देयर आर मैनी, C#, रूबी ऑन रेल्स, पर्ल, लाइक, एंड ये यूज़ होती हैं एज पर डिमांड. यहाँ डेवलपमेंट में भी फर्दर फ्रंट एंड बैक एंड के अलावा मोबाइल डेवलपर्स भी आते हैं. ठीक है, और उन मोबाइल डेवलपर्स में भी आगे फर्दर कैटेगरीज हो जाती हैं कि आप iOS के डेवलपर हैं या एंड्रॉयड के डेवलपर हैं. सो देयर आर लाइक, अब आप देख रहे होंगे ये हायरार्की किस तरह से मूव कर रही है. इसी तरह फिर जब डेवलपमेंट फेज के बाद टेस्टिंग टीम शुरू होती है, उस टेस्टर में भी आगे क्वालिटी एश्योरेंस के आगे दो फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, जिनमें एक मैनुअल टेस्टर है, एक ऑटोमेशन टेस्टर है. अब इस फील्ड के बाद इस फील्ड का क्या नॉलेज है. ठीक है, और यहाँ मैंने जैसे कि स्क्रम मास्टर भी लिखा है, ये बेसिकली जो पूरा प्रोसेस हमने SDLC का पढ़ा है ना, उसके अंदर ये पर्सन क्या कर रहा होता है, जो डेली बेसिस पे काम हो रहा है ना. पहले होता था कि आपने प्रोजेक्ट पकड़ा, 3 मंथ की डेडलाइन ली और 3 मंथ बाद डिलीवर किया. ठीक है, वो SDLC के आगे फर्दर मॉडल्स आते हैं, लाइक जिनमें वाटरफॉल है कि लाइक आपने एक चीज़ पकड़ी, टाइम पीरियड लिया और उसको दे दिया. लेकिन जिस तरह का अभी हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जो मॉडर्न एरा ऑफ IT है, यहाँ एवरीडे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है. आज क्लाइंट ये चाह रहा है, कस्टमर कह रहा है मुझे ये चाहिए, तो अगले दिन उसका रिक्वायरमेंट चेंज हुई होती है कि मुझे नहीं, ये नहीं ऐसे चाहिए. तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए फिर इन्होंने एक एजाइल मॉडल बनाया और उस एजाइल मॉडल के अंदर एक स्क्रम मास्टर रखा. ये स्क्रम बेसिकली ना एक स्टैंड अप कॉल का नाम, एक प्रोसेस है. ये पर्सन क्या करता है, इस पर्सन की जस्ट जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो सिर्फ ये होती है कि उसने डेली बेसिस पे एक 15 मिनट की कॉल करनी होती है पूरी टीम को. और उस टीम में कौन होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं. ठीक है, और उस पर्सन ने बेसिकली एक फॉलोअप लेना होता है कि आपने मोस्टली कंपनीज इसको हायर करते हैं, मोस्टली वो लीड ही देख लेते हैं. लाइक एज आई टोल्ड यू, ये डिपेंड करता है कि आपकी IT के अंदर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. वो स्टार्टअप कंपनी है, एस्टैब्लिश कंपनी है, कोई लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट चलने वाली कंपनी नहीं है. लाइक किस तरह से ये हर कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं. कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग वो काम डेवलपर्स और टीम लीड से ही ले लेते हैं कि आप ही अपनी डेली बेसिस पे अपडेट शेयर कर दिया करें. तो इस पर्सन का बेसिकली रोल यही होता है कि इसने फॉलोअप लेना होता है कि कल टीम ने क्या काम किया था और आज क्या किया है, और एक प्रॉपर टूल है जीरा वगैरह, उस बोर्ड के ऊपर उस सारे टास्क को डाल देते हैं और एक प्लानिंग के साथ चलता है कि 14 दिन बाद ये डिलीवर करना है, 7 दिन बाद ये डिलीवर करना है. तो इसमें काम को ना चंक्स में चलाया जाता है. ठीक है, तो क्यों चंक्स में और डेली बेसिस पे अपडेट्स ले रहे होते हैं, क्योंकि एवरीडे कुछ ना कुछ नया चेंज मांग रहे होते हैं और एवरीडे वो साथ साथ काम दिया और साथ साथ डिलीवर कर दिया. पहले ये होता था कि वो जो SDLC का प्रोसेस है पूरी फेज गुजरती थी तो फिर जाके टेस्टर इन्वॉल्व करते थे. लेकिन अब इन द बिगिनिंग प्लानिंग में सब टीम को बिठाते हैं, जो काम आज किया है वो अगले दिन डिलीवर कर दिया और जो काम नेक्स्ट डिलीवर किया वो अगले दिन. लाइक इसमें क्या है, 2 वे हो गया है. पहले 1 वे था कि पहले आपने चीजें पकड़ी, उसको प्रॉपर चेक किया, टेस्ट किया, एक डेडलाइन ले लेते थे. लेकिन अब एवरीडे और मोस्टली प्लानिंग के साथ ये चीजें चल रही होती हैं. और इसमें जो फाइनल हमारी टेस्टर है, इसमें मैनुअल टेस्टर होते हैं. ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आ जाते हैं और एक ऑटोमेशन टेस्टर भी होते हैं. मैनुअल टेस्टर के पास ज़्यादातर मैनुअल वर्क होता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन उसका बेसिक वर्थ होती है कि लाइक उसको डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया हो, उसको टेस्टिंग करनी आती हो, टेस्टिंग के क्या प्रोसेस है उन प्रोसेस का पता हो, और उन प्रोसेस में किन किन टूल्स और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, और उसकी हैंड्स ऑन कैसे करना है, या उस टेस्टिंग को डिलीवर करने से पहले कौन से वो पैरामीटर
मीटर्स और पॉइंट्स है जो देखने हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग में सारे का सारा काम मैनुअली होते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर जो काम आप मैनुअली कर रहे होते हैं उसको कोड के साथ, उसको स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ हैंडल किया जाता है। दिस इज अनदर फील्ड, ठीक है। ये टेस्टर के आगे फर्दर 2 निकलती है। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स है, जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस है, सिस्टम है, डेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स। अब हम लोगों ने ये देखना है कि जैसे कि मैंने आपको पीछे सारी फील्ड्स का लिटिल बिट हाउ नो नॉलेज भी दिया कि कौन सी फील्ड क्या कर रही है, कौन सा रोल क्या काम कर रहा है, और हर रोल की अपनी कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब हम लोग कैसे वैल्यूएट करेंगे कि हमें किस तरह से फील्ड को चूज़ करना है, हम किस फील्ड में जाएं। एज आई टोल्ड यू बिफोर के हर फील्ड की अपनी वर्थ है। यू कांट से कि डेवलपमेंट अच्छी नहीं है या डिज़ाइनर अच्छी नहीं है या HR अच्छा नहीं है। नो, एवरी फील्ड, अब देखें IT के अंदर ये सारे चेन रूल के साथ चल रहे हैं, और इसके बिना लाइक आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम डिज़ाइनर को एग्जिट करवा दें हम खुद वो काम कर लें। नो, एवरी पर्सन हैज़ देयर स्पेसिफिक स्किल सेट, और उन स्किल सेट की बेस पे वो अपनी स्पेसिफिक डिमांड और उसकी मार्केट में वैल्यू है। लेकिन सब फील्ड्स की अपनी अपनी वर्थ है और ये ज़रूरी है। इनके बगैर आपकी प्रोडक्ट जो है कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। आगे है, ये मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खुद राइटअप किया था। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताई कि CF और ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या काम करते हैं, ठीक है। ये उन फील्ड्स के हिसाब से मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट एंड यहाँ मैंने एक फील्ड मेंशन की है प्रोजेक्ट VS प्रोडक्ट। आपको ना मार्केट के अंदर टर्म्स का पता होना चाहिए कि व्हेन द पीपल यूज द वर्ड प्रोजेक्ट what it is called and when it is called product what it means, like क्या इसका मीनिंग है। बेसिकली जब हम कैंडिडेट के इंटरव्यूज करते हैं तो उनसे उनका प्रोफाइलिंग पूछते हैं कि आपका क्या प्रोफाइल है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल है आपकी, जो कि आपकी रिज्यूम, आपका CV बता रहा होता है, ठीक है। या आप मोस्टली अपने इंटरव्यू में डिलीवर कर रहे होते हो। इसी तरह कंपनीज की भी प्रोफाइलिंग होती है कि एक कंपनी जो वर्क कर रही है, जिनके साथ आप काम शुरू करने जा रहे हैं, उनका कंपनी प्रोफाइल क्या है, उनका स्टार्टअप था या उन्होंने कब स्टार्ट किया, उनका डोमेन क्या है। डोमेन मीन्स कि उनकी क्या क्या वो सेल कर रहे हैं, उनकी क्या सर्विस है, वो किस चीज़ में आगे इन हुए हैं। जैसे कि आप देखें कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, AI है, मशीन लर्निंग मॉडल है, E-कॉमर्स है, अ पार्ट ऑफ दैट वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच लाइक कमिंग अप इन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसमें कंपनी की प्रोजेक्ट, बेसिकली हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, कुछ कंपनीज होती हैं प्रोजेक्ट बेस्ड, शॉर्टर टर्म के लिए वो प्रोजेक्ट पकड़ती हैं आपका, उन्होंने प्रोजेक्ट पकड़ा और 3 मंथ 6 मंथ या मैक्सिमम जो स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर करते हैं, उस ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज। कुछ होती है प्रोडक्ट बेस्ड, जिन्होंने लॉन्गर टर्म चलना होता है, लाइक उनके पास एक प्रोडक्ट आई है और उस प्रोडक्ट का ड्यूरेशन है 2 years 6 years, बहुत सारी प्रोडक्ट्स 10-10 साल तक भी चलती हैं। सो ये डिपेंड करता है उनके क्लाइंट के ऊपर, उनके उस आइडिया के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो उन्होंने बिल्ड की है या जिसकी बेस पे वो अपनी हायरिंग कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर फ्रीलांसिंग को जानते हो, अपवर्क वगैरह या फाइवर वगैरह, उसमें बेसिकली ना ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज चलती हैं। वो क्या करते हैं, अगर उन्हें एक डेवलपर चाहिए और उन्हें पता है हमारी ये प्रोजेक्ट करने में 3 से 4 मंथ का टाइम लगेगा, वो उस डेवलपर को हायर करेंगे, उससे वो वर्क लेंगे और ख़त्म कर देंगे। लाइक काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो फिनिश कर देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट बेस में आपने एक टीम वाइज चलना होता है, उस टीम का पार्ट बनना होता है और उस टीम के प्रोसेस से गुजरना होता है। वही प्रोसेस जो मैंने पीछे आपको डिफाइन किया है कि हमारा उसमें जो है हमने हर एक फील्ड के साथ चलना होता है, क्योंकि QA टेस्टिंग जो है वो फील्ड है जिसको टेस्टिंग फेज में आना है जब, तो उसने डिज़ाइनर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उसने डेवलपर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उसके साथ निगोशिएट करना है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी है, उसकी टॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ भी होगी, और चीज़ जो फाइनल कस्टमर तक जाती है ना, वो QA की अप्रूवल के बगैर नहीं जाती। क्योंकि अगर एक चीज़ या जो प्रोडक्ट आप डिलीवर करने जा रहे हो, डिज़ाइनर ने डन कर दिया, डेवलपर ने डन कर दिया, QA ने टेस्ट करके उसको पास कर दिया, then it is confirmed it should not be fail in with customer। लाइक अगर वो रिलीज जाती है, लाइव लॉन्च होती है, प्रोडक्शन सर्वर पे जाती है, तो वो वहाँ जाके completely वर्क करनी चाहिए। That's why this QA person is very important role in the software development life cycle, and without this person वो आगे चीज़ को या आपके सॉफ्टवेयर को, आपके डिलीवरी को,
आपकी रिलीज को आगे मूव ऑन नहीं कर सकते. और दिस इज द मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन. If that person say yes it is working fine and I'm going to give to the like आप दे दें आगे release कर दें, then this person is basically taking surety and giving the confidence yes we are good to go. Then no जो कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट्स आएगी वो इस बाकी फील्ड्स के लोगों के साथ नहीं पूछी जाएंगी. डेवलपर विल डेफिनेटली से इफ आई डिड develop something and it is given to the customer, it is given to the tester was the person who has to tell us this is like ये scenarios था या अगर वो out of the box सोच के हमें बताना चाहिए था and send back to us. So that's why this person is basically having the lot of responsibilities and the basic thing is like major responsibility for delivering in delivery process is the QA. So ये इसका जो है टोटल वर्क फ्लो है जो आईटी के अंदर चल रहा है. नेक्स्ट है कि हमें कौन कौन से कोर फैक्टर्स हैं. अगर आप टेस्टिंग फील्ड में आते हैं तो हमारे पास क्या ऐसी नॉलेज बेस होनी चाहिए या हम किस तरह से इस फील्ड को चूज कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सब बैचलर्स फील्ड से नहीं गुजरते. लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने BSc IT या SE नहीं किया होगा. क्या वो IT के अंदर इस फील्ड में आ सकते हैं या वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में उनकी एंट्री वगैरह हो सकती है. व्हेन आई वाज स्टडीइंग डेफिनेटली आई वाज थिंकिंग द सेम. नो, अगर इस फील्ड में आना है या आपने IT सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है तो आपका बैचलर CS SE IT के साथ होना ज़रूरी है. Because university education is helping you to understand the processes to things, but the basic practical is a different thing in IT industry. वहाँ आपका practical, how much you know, how much you have hands on, how much you know about the processes, कितना आप उस field के अंदर command रखते हैं, that is really matter. तो सबसे पहला जो important key factor है ना किसी भी field का, चाहे वो testing है, development है, designing है, whatever it is, अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ वर्क करना चाह रहे हैं या कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है ना जिसकी ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन. यू शुड बी वेरी गुड इन इंग्लिश, आइदर रिटन और ओरल. आपको उसमें बहुत बेस्ट होना चाहिए. और ये कम्युनिकेशन बेसिकली इम्प्रूव होती है. डेफिनेटली हम लोग अब ज़्यादातर पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर हाउसेस का बिजनेस है ये सब के सब अब्रॉड क्लाइंट्स के साथ चल रहे हैं. The abroad clients, either it is UK client, USA client or Middle East, whatever the region they are, they only speak English, right? English is like international language and you should be know how to communicate, how you can like convey your thing to that person और किस तरह से आप उनकी जो है understand करके तो ये चीज़ आती है practice के साथ. If like with your work, like अगर आप clients के साथ, it is not very hard thing, ये मुश्किल नहीं है. इसके लिए आपको जस्ट करना क्या होता है कि जैसे आप कोई क्लाइंट या कस्टमर डेफिनेटली बेसिक लेवल की इंग्लिश तो सब बोल लेते हैं लेकिन जैसे कि टर्म्स का पता होना चाहिए. दे यूज मोस्टली टर्म्स लाइक सर्वर्स, स्टेज सर्वर, QA सर्वर, प्रोड सर्वर. यू नो ये सर्वर्स क्या हैं, ये क्या इन्वायरमेंट्स है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, स्टेजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है. इस तरह के टर्म्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. और जो इसमें सबसे पहली बेस्ट थिंग आती है ना आपकी कम्युनिकेशन है कि आपका उनको कम्युनिकेट करना. बिकॉज अगर आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स को और आप अपनी बात उनको नहीं समझा सकेंगे, डेफिनेटली इट विल बी द फर्स्ट स्टेप. whenever you do not speak with them, definitely you don't understand what they are saying. और मोस्टली जो फ्रीलांसिंग में लोग हैं वो फ्रीलांसिंग बिजनेस में तब आता है जब उनको इस चीज़ पे कमांड हो जाती है. लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली इफ़ यू आर वर्किंग सम सॉफ्टवेयर हाउस, डेफिनेटली आपको ज़्यादा कम्युनिकेट वहाँ इंग्लिश में नहीं करना पड़ता. बिकॉज आपके जो टीममेट्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, दे स्पीक इन उर्दू, नेटिव लैंग्वेज है हमारी और हम उनसे अपनी डेफिनेटली बात समझ लेते हैं. लेकिन उनके जो मैनेजर्स लेवल के लोग हैं आपको मीटिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं, आपको स्टैंड अप कॉल्स में इन्वॉल्व करते हैं. क्यों? कि आपकी इम्प्रूवमेंट आए. सो सेकंड थिंग जो आती है हमारी टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअल टेस्टिंग थी पहले, अब ऑटोमेशन का भी स्कोप हो गया है, ठीक है. मैनुअल टेस्टिंग के साथ डेवलपर्स हैं. अब डेवलपर पहले लारावेल पे काम करते थे, अब लारावेल को कोई भी नहीं जानता कि लारावेल लाइक इट इज़ लाइक .NET और लारावेल पे पहले बहुत काम चल रहा था. लाइक इफ वी मूव 10 years बैक तो लारावेल का एक नाम था, PHP का एक नाम था, बट नाउअडेज जावास्क्रिप्ट इज एवरीवेयर. सो आपका सेकंड जो कोर कंपोनेंट है ना कि आप अपनी स्किल के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करेंगे. बिकॉज अपग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपनी एक ही फील्ड के लाइक अपने एक टूल के साथ काम कर रहे हैं और आपको पता चला है कि इस टूल के बाद एक नया टूल आ रहा है, यू हैव टू बी learning never stops and it never ends. So you have to be upgrade yourself with the technology. आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट
क्या है और ये किस तरह से पता चलता है. दिस इज लाइक बेसिकली टू कनेक्ट विद योर डेफिनेटली लिंक्डइन पे आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और रिसर्च वर्क से बहुत ज़्यादा पता चलेगा. और थर्ड थिंग है स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस ऑफ डोमेन्स. यहाँ डोमेन से मुराद जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के सिस्टम्स है. LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई-कॉमर्स है, ठीक है, लोग अपनी जो है सेलिंग और परचेजिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की. कोई लेंसेज पे काम कर रहा है, कोई ग्लासेस पे काम कर रहा है, कोई कपड़ों क्लोथ्स को लेकर रन कर रहे हैं. जैसे मार्केट में आपने आजकल सुना होगा ये मोस्टली लोग प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह बहुत कर रहे हैं. सो आपको डोमेन नॉलेज का पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या इन है, मार्केट किस चीज़ पे मूव कर रही है और हमारी स्किल जो है उसमें कितना रोल अदा करेगी और हमें उसमें अपग्रेड करने के लिए कितना आगे जो है मूव ऑन करना पड़ेगा. सो ये बेसिकली डोमेन नॉलेज आता है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ. व्हेन यू मूव टू योर वर्क, लाइक व्हाट यू आर लर्निंग एंड व्हाट यू आर गेनिंग एंड व्हाट आर यू डिलीवरिंग. और जो फाइनल थिंग है वो है कि आपको पता होना चाहिए स्कोप और ऑब्जेक्टिव का. ये किस तरह पता चलता है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन IT, दे आर वर्किंग विद टीम, लेकिन बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है कि उन्हें आइडिया नहीं हो रहा था कि सेम उसी तरह है. आप एक सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो बट यू आर नॉट नोइंग व्हाट यू आर स्टडिंग. लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सेम लाइक इफ आई एम डिलीवरिंग दिस वेबिनार, अब इसमें मैंने स्लाइड्स में जो भी मेंशन किया है या मैं जो भी बोल रही हूँ आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या स्पीक कर रही हूँ और मेरे इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी ज़्यादा. जब तक आपको उस चीज़ के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग होगी यू कांट गो विद दैट थिंग, आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे. और जो फाइनल चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, चाहे आप डिज़ाइनर हो, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप बिजनेस एनालिस्ट हो, चाहे आप QA हो, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यू आर वर्थलेस. इवन ये उसी तरह जैसे आप एक काम कर रहे हो लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, आप उसको कहीं लाइक मेंटेन नहीं कर रहे. ये उसी तरह के आपने एक फूड कुक किया बट आप उसको बता नहीं पा रहे कि मैंने ये क्या किया और किस तरह से किया है. दैट इज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर टेस्टिंग फील्ड. सो ये वो कोर कंपोनेंट्स हैं जिनका मतलब अभी नॉर्मली सबसे पहली जो है वो कम्युनिकेशन है आपकी. और जो हैंड्स ऑन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है वो चीज़ें हैं लाइक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक वेबसाइट टेस्ट करने के लिए दी जा रही है या आपको मोबाइल ऐप टेस्ट करने के लिए दी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसको कैसे टेस्ट करना है, मुझे रिपोर्ट कैसे लिखनी है, मुझे आगे डिलीवर करना है तो किस फॉर्मेट में डिलीवर करना है और मेरी जो है डॉक्यूमेंटेशन वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि क्लाइंट या कस्टमर आपको दोबारा अप्रोच ना करे कि लाइक वो इतना गुड हो कि आपको आइडिया होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी लाइक आपको उस चीज़ करना मुश्किल ना हो. So that is the documentation part and next is question answer orientation. I think we need to be now if you understand the things, you have questions, you can ask from me. QA टेस्टिंग के लिए आपका अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का हो, बेशक वो नॉन टेक्निकल ना भी हो लेकिन ये कि एटलीस्ट उसका IT का वो एक्सपोजर ना हो, तो how easy it is to cope with this new QA technology if he wants to switch his career. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास आपने बैचलर्स नहीं किया, आपके पास 4 साल का कोर्स नहीं है बट you are interested to do start QA, तो आपको सिर्फ QA का ही बेसिक नॉलेज और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हाउ और इसमें ऑलमोस्ट आपको 3 to 6 months लगेंगे बिकॉज इफ यू आर टोटली फ्रेशर यू आर स्क्रैचर, आपको आइडिया नहीं है और ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी कि आपको चीज़ों की कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है. तो कोई भी फील्ड है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. बहुत सारे लोग मेरे कलीग्स हैं, they are not one is bachelor's BA, simple BA graduate, he is a front end developer. In my teammates there are a lot of people who are not basically having the background of IT but they are good in their own fields. They choose the field, like someone choose designing, someone choose front end, and most of the people also come to QA and they started to learning and they started to practically hands on it and they got in industry and they got jobs and they are working. आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में अगर आपने QA का कोर्स किया डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस या तो अपने किसी मेंटोर के साथ या किसी टीचर के साथ और या किसी ऐसी इंडस्ट्री के साथ जो लाइक स्टार्टअप है, आप जस्ट अपना इंटरव्यू दो, अपने आप को अगर आपने प्रैक्टिकली बहुत अच्छा किया है
and you are good in QA, then doesn't matter either which background you are. जिनके मैं प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, and they don't have the background of the IT. So the thing that is matter, it's your potential, it's your interest with that field, and it's your like basically comes interest, like how you are comfortable with that field. As I explained every field in my slide, I'm not saying Q is the best. I'm just saying every field has their own worth. It's your decision. It's your self-based decision, which you are very comfortable. Definitely, जैसे हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और हम कहते हैं मैथ में बेस्ट है, मैं बायो में बेस्ट हूँ या मैं इंग्लिश में बेस्ट हूँ. हाउ वी कुड नो, हमें कैसे पता चलता है हम इस चीज में बेस्ट है? आफ्टर गेटिंग इन्वॉल्व विद दैट थिंग, राइट? सो नो बेसिकली ये जो आपका कोर्स डिजाइन है फॉर 8 वीक्स, लाइक अगर अब एज अ बिगिनर देखा जाए, मतलब आई डोंट नो अबाउट द कोर्स मॉड्यूल, like is it designed for a person kind of a layman, not a layman in terms of technical knowledge, but obviously in terms of IT, in terms of QA, that's what my so usko kitna ek matlab time lagega to cope up with this, and how advanced is this course is going to take him, like if after doing this course uska level kitna ek hoga कि मतलब वो will he or she will be enough confident to handle or at least to get an interview stage. क्योंकि मतलब अगर सिर्फ बेसिक होगा तो वो फिर उसको इसका मतलब इसका कोई फर्दर कैरी ऑन कोर्स भी उसको करना पड़ेगा जस्ट टू बी एडमिटेड. यस, लेट मी टेल यू. आप अगर डेफिनेटली जो कोर्स डिजाइन किया है 2 months का, दैट इज एनफ टू एंटर दैट पर्सन टू स्टार्ट हिज फ्रेशर जॉब एज अ QA. इतना ये काबिल होगा कि लाइक क्योंकि वो इंटरनल लेवल पे नहीं हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मीन्स लाइक आपका इस लेवल का हो जाएगा कि आप उस 2 months के कोर्स के बाद आप अपने आप को वहाँ फॉल कर लोगे. लाइक अगर आप फ्रेशर के तौर पे तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो. इफ यू डू गुड प्रैक्टिसेस एंड हैंड्स ऑन विद इन 2 months, डेफिनेटली इट विल बी चांसेस कि आप किसी जूनियर लेवल पे. लेकिन ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, कि आपको कितना काम आता है. एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट है जो टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट हैविंग द IT बैकग्राउंड, बट दे जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस एम, वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू. पहले ये था कि CS IT SC के अलावा किसी का इंटरव्यू, मैं जब खुद इंटरव्यू दे रही थी 2013 में, आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट कि कोई सिर्फ ये 3 जिन्होंने डिग्री ली है वही जा सकते हैं IT के अंदर. बट when I started to work with the company, then I realized this is not important. आपका ये जो डिग्री है, this is just helping you like as जैसा कि मार्केट में डिमांड है जी हमारे पास डिग्री हो. अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है but they are working remotely. मेरे पास बहुत सारे ऐसे लिस्ट के लोग हैं जो IT बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने इवन जो मोस्टली डायरेक्टली फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं जस्ट टू गेट लर्निंग. और बाकी रही बात ये कि इस कोर्स को करने के बाद आप कितना काबिल हो जाएंगे कि आप एक IT के अंदर एंटर हो सकते हैं, डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा आपके लर्निंग के ऊपर, आपके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन के ऊपर, और आपको कितना गुड उसमें कमांड आएगा. कमांड के बाद अगर आप जी अभी जिस तरह जो है ना, हर बंदे को अपना थोड़ा बहुत आइडिया होता है. मतलब आई कैन फॉर श्योर से कि आई एम नॉट दैट गुड, आई वोंट बी दैट गुड इन प्रोग्रामिंग, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. लेकिन तो क्या ये QA के लिए अगर ये कोर्स किया जाए विदाउट लाइक obviously I know for a fact I'm not a good developer, I cannot be मतलब मेरे पास I don't have that skill set or at least that mindset. आपने डेवलपमेंट की स्किल्स के लिए ट्राई किया है, आपने पहले किसी कोर्स को करने की कोशिश की? सॉरी, व्हाट्स योर गुड नेम, मे आई नो इट? हाँ, my name is Umar. तो मैंने कोर्स नहीं, मेरा कोई IT का बैकग्राउंड नहीं, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. लेकिन ये है कि जस्ट मूव ऑन विद दिस न्यू टेक्नोलॉजीज, QA टेस्टिंग का जो यहाँ पे स्कोप है, तो वो मैं उस एस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ कि मतलब हाउ इफेक्टिव, मतलब अगर QA करे बंदा तो उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग अगर स्किल सेट बहुत स्ट्रांग ना भी हो तो इज इट ओके? मैनुअल टेस्टिंग में नहीं. यस, मैनुअल टेस्टिंग के लिए ऐसा नहीं कि QA वाले प्रोग्रामिंग में नहीं चाहते. डेफिनेटली मैंने मैनुअल से अपना करियर स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं ऑटोमेशन कर रही हूँ. I am working with JavaScript. So ये डिपेंड करता है. देखिए, मैनुअल टेस्टर्स आर रिक्वायर्ड, डेफिनेटली दे रिक्वायर्ड. आप मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देके आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं. आप इस कोर्स के बाद इतना काबिल हो जाएंगे कि आप किसी IT इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो सकते हैं. आप अपने स्किल सेट की बेस पे
ये जैसे नॉर्मली जो रोल्स आते हैं कि मैनुअल टेस्टर से क्या डिमांड्स होती हैं कि उसको बग रिपोर्टिंग आनी चाहिए, उसको अच्छी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी चाहिए, टेस्ट केसेस लिखने आने चाहिए, ठीक है, और उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट क्या और कैसे करना है। तो इस तरह के 5-6 पैरामीटर्स जो कवर होते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी गेट लाइक स्टार्टिंग ऑफ योर मैनुअल टेस्टिंग जॉब। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी अगर आपको जॉब मिलती है, आप काम करते हैं या आप अपने फ्रीलांसिंग में इसको स्टार्ट करते हैं, ये आपके स्टार्टिंग के बाद आप इसी लेवल पे रहना चाह रहे हैं या आपने आगे अपने आप को अपग्रेड करना है, दैट इज अदर थिंग। लेकिन अबाउट दिस कोर्स विच आई एम टेलिंग यू, ये मैनुअल टेस्टिंग का है, इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं जरूरी, इसके लिए आपका बहुत हाई फाई आपको सॉफ्टवेयर SC1 SC2 की बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो क्या मार्केट में इन है, इस कोर्स को लेके क्या मार्केट में डिमांड की जा रही है और कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज पे इस पे काम मांगा जा रहा है। यू जस्ट नीड टू लर्न दैट वन एंड यू जस्ट नीड टू teach hands on that thing, that's all. My name is Azhar. मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि इसमें दो चीजें हैं, एक मैनुअल टेस्टिंग और एक ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ये कोर्स डिजाइन किया गया है, क्या वो मैनुअल टेस्टिंग के लिए है या ऑटोमेशन टेस्टिंग, दोनों चीजें कवर होंगी या एक चीज कवर करेंगे? नहीं, अभी मैनुअल टेस्टिंग के लिए है क्योंकि ऑटोमेशन इज नेक्स्ट स्टेप। ये इसी तरह लाइक आपका फेज 1 मैनुअल टेस्टिंग होगा, अगर आप अच्छे मैनुअल टेस्टर होंगे देन यू विल मूव टू दैट ऑटोमेशन पार्ट। ये उसी तरह है जैसे आप कह लें कि आप पहले बेसिक सीखेंगे, मैनुअल टेस्टिंग के बगैर आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। अगर आपको मैनुअली चीजें नहीं पता, हाउ कैन यू डू ऑटोमेशन? आई जस्ट एक्सप्लेन दिस कि जैसे डेवलपमेंट की फेज थी ना कि बैकएंड है, फ्रंट एंड है, मोबाइल में है, iOS है, एंड्रॉइड है, सेम। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की 2 बेसिक ब्रांचेस हैं, मैनुअल और ऑटोमेशन। इसके अलावा और भी हैं, परफॉर्मेंस टेस्टर भी होते हैं, सिक्योरिटी टेस्टर भी होते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टर भी होते हैं, integration tester, there are a lot of branches, but the major highlight which is demanding nowadays in market, manual and automation. लेकिन ये जो कोर्स मैंने आप लोगों को 2 months का डिजाइन करके दिया, that is totally related to manual, not automation. तो मार्केट के अंदर जो मैनुअल की टेस्टिंग टू ऑटोमेटिक टेस्टिंग का जो रेशियो है वो क्या है? मतलब जो आईटी 2020 से व्हेन आई कम बैक टू पाकिस्तान, ये उसके बाद ज्यादा हाई रेट जा रहा है, ऑटोमेशन हाई रेट जा रही है, और मैनुअल जो है डेफिनेटली मैनुअल पर्सन्स को ही अब एज ऑटोमेशन भी हायर कर रहे हैं। लाइक अगर आपके पास मैनुअल स्किल्स है ना और आपने उसके साथ कोई ऑटोमेशन का टूल भी लर्न कर लिया है, देन दे विल बी डेफिनेटली प्रेफर दैट पर्सन। और उसके अंदर टूल्स हैं जैसे साइप्रस है, सेलेनियम है, दीज आर वेरी हिट नाउअडेज। साइप्रस की बहुत डिमांड है एंड दैट इज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। बट उसी तरह जैसे आप कह लें कि आप ABC नहीं जानेंगे, हाउ कुड यू नो द इंग्लिश राइटिंग? आपने इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए पहले बेसिक तो आनी चाहिए ना। तो मैनुअल टेस्टिंग इज बेसिक, आफ्टर दैट यू कैन चूज योर करियर। लाइक जैसे आपको मैंने बताया कि आप मैनुअल टेस्टिंग अगर करते हैं, आप लोग अपने फॉर एग्जांपल अच्छी हैंड्स ऑन के बाद इसका जॉब इंटरव्यू भी करते हैं, तो आप डन कर लेते हैं, आप अपनी जॉब के साथ अपने साथ एज अ पार्ट टाइम एज अ वीकेंड अपनी लर्निंग कर सकते हैं ऑटोमेशन में, एंड यू कैन गिव योर सर्विसेज एज बोथ। डिमांड्स दोनों की, लेकिन हाई डिमांडेड अभी जो है मोस्टली क्योंकि ऑटोमेशन की तरफ वर्ल्ड मूव कर रही है बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ IoT। इसके अलावा टेस्ट IM है, साइप्रस है, सेलेनियम है, बहुत टूल्स हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट टफर टू लर्न, बट बिफोर मूविंग टू दैट स्टेप you should be a good manual tester. If you are very good manual tester, then you can easily learn within 1 month any automation tools, क्योंकि उसके अंदर इंस्पेक्ट लेवल की चीजें हैं, कोड लेवल की चीजें हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का तरीकाकार है। आपने एक वेबसाइट को ही ऑटोमेट करना है, लेकिन अगर आपको वेबसाइट को मैनुअल टेस्टिंग नहीं आएगी, हाउ कुड यू ऑटोमेट दैट वेबसाइट? सो मैनुअल इज स्टेप 1 एंड बेसिक। इसकी कोर्स आउटलाइन क्या होगी वो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं, जरा बता दें कि कोर्स में क्या क्या होगा 2 मंथ का, जरा वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट मी चेक। आई थिंक मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर की थी, मैं फिर देख लेती हूँ रोड मैप। I have shared the link in the chat for course outline and other details and for registration process. Sorry, let me take it from there. Where is the link? Ma'am, it's in the chat section. Let me share again. Yes, please share me now, because there are a lot of messages there
I will be reply step by step. Okay, thank you. No issues. Excuse me, मैम. जी मैम मेरे क्वेश्चन है कि एज एन SQA जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, मैम ये हमें पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है इसकी? सब कुछ मिलता है. यू जस्ट नीड टू लर्न. आपको अगर कहीं जॉब नहीं भी करनी है, आप फ्रीलांसिंग में भी सर्विसेज दे सकते हैं. आपको फाइवर अपवर्क वगैरह का पता है? जी लेकिन मैम. एक्टिव होना पड़ेगा आपको. मैम Exactly. उसकी आपको जी. एक्टिव होना पड़ेगा. ठीक मैम, मतलब इसकी मतलब ये है कि उसमें हो सकता है इसका एज अ पार्ट टाइम या फ्रीलांसर में हम कर सकते हैं. ये कर सकते हैं आप. कुछ कंपनीज भी हैं जो एज अ पार्ट टाइम आपको जॉब दे सकती हैं. अगर आप अच्छे इस पे कमांड्स ले लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगी आप सबको रेफर करने की. लेकिन सबसे पहली चीज है कि आपको पहले उस चीज तक पहुंचने के लिए ना आपको लर्निंग करनी बहुत जरूरी है. लर्निंग करनी. जी मैम, ये जी, तो है. उसी तरह जैसे मेरे पास स्किल है, आई कैन इजीली रेफर समवन. अगर किसी के पास एक स्किल है, if you need my reference, if you need to work remotely, if you need to work anywhere in Pakistan, and I can help in that matter. Like help इस तरह से कि like बहुत सारे रिक्रूटर्स आपको LinkedIn पे आपको प्रोफाइल बना के अपना अच्छा रखना है, आपको अपना अपवर्क को एक्टिव रखना है. आपको एक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा. जॉब्स मिल जाती हैं. देखें, रिस्क इज डेफिनेटली डिलीवर्ड बाय अल्लाह. हम लोग जस्ट एक कह लें कि जरिया होते हैं. अल्लाह ताला ने बिल्कुल मेहनत करते हैं. आप कोशिश करें, इंशाल्लाह माइट बी पॉसिबल यू विल बी गॉट वेरी गुड जॉब, एंड माइट बी पॉसिबल यू विल गॉट योर ओन वर्क. आप अपना काम भी कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. जी, मैं आउटलाइन और मैम मोस्टली सेलेनियम यूज करते हैं हम या दूसरा एक साइप्रस प्लांट है ना? जी 2013 से 16 से 18 तक जो था ना सेलेनियम वेब ड्राइवर. सेलेनियम एक ना ओपन सोर्स टूल है, ठीक है. बेसिकली वो टूल ही API है इसको. और सेलेनियम जो है ना वो हर लैंग्वेज के साथ चला जाता है. लाइक जावा हो, पाइथन हो, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, OS इंडिपेंडेंट है. आप उसको लिनक्स, विंडोज, मैक, एनीवेयर यू कैन यूज. सेकंड जो चीज है, आजकल जो सबसे ज्यादा फेमिलियर है वो है Cypress.io. that is JavaScript tool. ठीक है, वो end to end टेस्ट देते हैं. I can also like show you after discuss this outline कि उसमें क्या चीजें आती हैं. वो एक अलग टूल है, ठीक है. तो ये अब देखिए, पहले Selenium 5 years बहुत ज्यादा चला, अब Cypress पे लोग मूव कर गए हैं. Cypress JavaScript बेस्ड है, ठीक है. उसमें रिपोर्टिंग अच्छी है. सेम यही चीजें जो आप मैनुअली टेस्ट करते हैं ना, उसमें एक्चुअली ये फंक्शनल और एंड टू एंड टेस्ट को कवर करते हैं. आपको पता है कि आपको बार बार आपको लॉगिन का पेज चेक करना है या आपको साइन अप कब बनाना है. अब आपको कोई कह दे कि 1000 यूजर साइन अप पे क्रिएट करने हैं, आप कितना टाइम लेंगे? पूरा दिन ले लेंगे, आई थिंक सो. लेकिन अगर आप ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट लिखेंगे, लूप लगा के, वो आप 1000 टाइम उसकी कंडीशन सेट कर देंगे तो वो शायद 5 मिनट में कंप्लीट कर देगा. सो दिस इज, ठीक है. तो ऑटोमेशन बेसिकली आप हर जगह ऑटोमेशन ही लगा सकते हैं. ये भी एक क्वेश्चन है कि एवरीवेयर ऑटोमेशन काम आती है. नो, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए लगा सकते हैं. यस जी नाहिद, कैन यू हियर मी? दिस इज राहिल. यस, आई कैन हियर यू. Rahil, how are you? Okay, this is Rahil Kokar. हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. Okay, Nahid, this is Rahil Kokar. So I just wanted to step in and have a couple of words, if you allow me. Yes, sure. I can allow you. Go ahead. All right, thank you. Okay, so I'm sorry. First of all, my name is Rahil Kokar. I'm from Code Movement, Pakistan. So thank you very much for this wonderful piece of information, and session has been brilliant. थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है, I just wanted to give my 2 cents about the questions these guys have been asking. Okay, first off, I've been in this industry for almost 20 years now. Okay, or day in day out, there are enormous jobs that we advertise, or we do not find quality resources. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कि इसकी जॉब्स हैं मार्केट में या नहीं है, there are enormous jobs. What we are lacking is the quality skill set. That's what you have to develop in the first place. ठीक है, so this is what this course is for. Second thing, थोड़ा सा फर्क समझें ऑटोमेटेड टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग को.
जब मैनुअल टेस्टिंग आपको एक चीज अच्छी तरह टेस्ट करनी आ जाएगी कि ये चीज ठीक चल रही है या नहीं चल रही, ओनली देन यू विल एबल टू पुट इट ऑन अ मशीन कि वो मशीन उसको टेस्ट करे कि चीज ठीक चल रही है। अगर आपको वो चीज को खुद टेस्ट करना नहीं आ रहा कि ठीक चलती है या नहीं चलती है, इसकी खराबी पकड़नी आपको नहीं आ रही, तो आप अपनी मशीन को, अपने सॉफ्टवेयर को गाइड कभी नहीं कर सकेंगे कि उसकी एरर पकड़े। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो फर्स्ट ऑफ, जब आप सीख लेंगे मैनुअल टेस्टिंग, तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग विल जस्ट बी अ मैटर ऑफ लर्निंग अनदर टूल, अनदर लैंग्वेज। तो मेरा ख्याल है दैट वाज फ्रॉम माय साइड। I hope that was helpful. Yeah, thank you so much. So yes, this was the question of one candidate, like if I want to learn automation. So I was just telling, like जो first basic step है आपका वो पहले manual है. If you are very good manual tester, then it will be very easy to learn automation after that thing. जी मैंने आउटलाइन खोल दी। जी प्लीज सॉरी मैम, बस मैनुअल टेस्टिंग के एक कोई एग्जांपल रिपीट कर देंगे, लाइक एग्जांपल में सेंस के कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, क्या होता है? मैं उसी पे आ रही हूँ। देखें, मैनुअल टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने स्नैगिट इधर यूज किया हुआ है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग सम टेस्टिंग ऑफ एनीथिंग, मैं यहाँ से कोई भी आपको जस्ट एग्जांपल के लिए ओपन कर लेती हूँ कोई भी एप्लीकेशन। यहाँ हम इन्हीं की वेबसाइट को ले लेते हैं, ठीक है, डाइस एनालिटिक्स की। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले, आपके पास 5 ब्राउजर्स होने चाहिए मोस्टली, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग में जो मेजर टेस्टर्स ने चीज़ चेक करनी होती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो मल्टी या क्रॉस ब्राउजर में किस तरह से परफेक्टली काम कर रही है। लाइक अगर क्रोम में ओपन है तो कैसी है, फायरफॉक्स में ओपन है कैसी है, सफारी में ओपन है तो कैसी है। आपके पास 5 ब्राउजर्स होने चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी हो सकता है, मोस्टली पीपल यूज विंडोज, लिनक्स और एनीवेयर लाइक मैक वगैरह। सेकंड थिंग जो आपके पास होनी चाहिए, डिफरेंट टूल्स हैं स्क्रीन कैप्चरिंग के लिए, बग्स को रिपोर्ट करने के लिए। लाइक आपको ब्राउजर में भी बिल्ड इन मिल जाएंगे, जैसे अभी ये देखिए मैंने वेबसाइट इनकी खोली है, ठीक है। आई वाज जस्ट चेकिंग द कंसोल। अब फॉर एग्जांपल एक हम एरर कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपने स्नैगी टूल के थ्रू इसका फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। यू कैन रिपोर्ट टू योर टीम इन टर्म्स ऑफ योर जो भी आप कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप यूज कर रहे हैं। तो आप इस स्नैगिट एक टूल है जो हेल्प करता है आपको स्क्रीन कैप्चरिंग के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, आप उसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक बग बताना है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करना है, आपने एक चीज़ पकड़ी है, आपने एक प्रॉब्लम पकड़ा है और एक इशू पकड़ा है, तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है, तो आप इस स्नैगिट टूल को यूज़ कर सकते हैं। आप स्निपेट टूल यूज़ कर सकते हैं, और आप कोई भी लाइक एनी टूल आप उसको ले सकते हैं। ये जैसे ये देखें, अभी मैंने टूल ओपन किया, ये मैं इसको रिपोर्ट करना चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और आप इसमें राइट कर सकते हैं, प्लीज रिव्यू दिस कंसोल एरर, ठीक है। आप इसको राइट कर सकते हैं, आप इस टूल के थ्रू बग को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको कॉपी करके आप टीम को गाइड कर सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग ये डायरेक्टली चैट में हैंडल कर लेते हैं, कुछ एक्सेल की फाइल भी बना के हैंडल करते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू करें, आप कुछ पूछ रहे थे जो कोर्स। अच्छा, हाँ, ये जो आपका जो जिस तरह आपका कोर्स जिस तरह आप डिलीवर करेंगे, उसके साथ आप इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच के थ्रू करेंगे, ताकि एक दफ़ा आपको जो टेस्टिंग का पूरा साइकिल है जो है वो, और कोई भी एक लाइव एग्जांपल लेकर, या कोई भी आपको जो प्रोजेक्ट है या जो करंट चल रहा है या कुछ हो, उसको उस तरीके से, मतलब जिस तरह फेसेस हम कर रहे होंगे एज अ लाइफ साइकिल ऑफ एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल। SDLC लाइफ साइकिल के जो मैंने आपको बताया डेफिनेटली, और ये जो मैंने भी दिखाया था ये एजाइल मेथड है, ठीक है। आपको सारा कुछ बताया जाएगा और आपका सारा प्रैक्टिकल होगा। इफ आई विल डिलीवर लेक्चर ऑन वीकेंड, डेफिनेटली आई विल बी गिव वर्क फॉर 5 days। वो वर्क आपकी बेसिकली आपकी प्रैक्टिस और हैंड्स ऑन होगा, और उसके लिए हर एक पर्सन को उसका सेपरेटली कोई वेब एप्लीकेशन, कोई मोबाइल एप्लीकेशन आई विल बी हैंड ओवर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट केसेस का लेक्चर पढ़ा है तो उस टेस्ट केसेस को मैं प्रैक्टिकली आपको दूंगी, हाउ यू विल डेवलप दैट टेस्ट केसेस, यूज केसेस कैसे बनाते हैं। सो एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल बेस्ड। दैट्स द थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू कि आपका बुकी से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, एंड दैट रियली मैटर्स इन द मार्केट। अगर आपको काम आता है, आपको प्रोसेस का पता है, आपको वर्क आता है और आपको आइडिया है कि टेस्टिंग करनी कैसे, देन नो वन विल डेफिनेटली डिनाई इफ यू आइदर यू हैव knowledge of CS or SC or IT, but they will be definitely see your practical। और ये मैटर करता है। मैम जी मैम, वो DevOps जो होता है मैम,
डेवलपमेंट और ऑपरेशनल, मैम उसमें भी तो यही चीजें हम फॉलो कर रहे होते हैं। No. DevOps is different field. Let me tell you. DevOps में basically आती हैं आपकी डिप्लॉयमेंट। मैं आपको जरा एक्सप्लेन करती हूँ। इफ यू सी DevOps के अंदर आती हैं, यहाँ आपको मैं SDLC ओपन करके दिखाती हूँ एक मिनट। ओके आपको यहाँ टेस्टिंग के बाद यहाँ एंड डिप्लॉयमेंट लिखा आ रहा होगा, ठीक है। बेसिकली DevOps का जो काम होता है ना, उस पर्सन ने जो क्लाउड के ऊपर कोड पुश कर रहे हैं, जितना भी कोड माइग्रेशंस हो रही हैं, इंटीग्रेशंस हो रही हैं, वो सारे का सारा उसने देखना होता है DevOps इंजीनियर में, ठीक है। मोस्टली जो है ये काम वो भी कर लेते हैं, लाइक जैसे कि टीम लीड है, मैनेजर्स हैं, जैसे राहिल खोखर है, ठीक है, इनकी अब टीम है, इन्होंने अपनी टीम का कोड रिव्यू किया, तो ये उस कोड रिव्यू के बाद गिट और बिट बकेट पे मर्ज रिक्वेस्ट करके सेंड कर देंगे। मैम मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बता रहा था कि हर उसका कंपनी का जो SQA का होता है वो अलग है, कोई सॉफ्टवेयर या यूज कर रहे होते हैं हम, तो इज इट ट्रू कि या एक ही स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं इसका? मैं बताती हूँ। अगर आप जीरा बेसिकली ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, जीरा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कस्टमाइज बोर्ड है, इसके अलावा ट्रेलो है, ठीक है। ये जस्ट सॉफ्टवेयर है, इट इज नॉट हार्ड सॉफ्टवेयर, ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेलो है, जैसे बेस कैंप है, ठीक है। ये बोर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी रोज की डेली एक्टिविटीज, अपने टास्क को प्रॉपर टाइम और डिलीवरी के साथ देने के लिए यूज, अगर आपकी हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए। देखिए आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दे विल बी डेफिनेटली नीड टू रिव्यू योर परफॉर्मेंस, कि आपने कितना काम किया है, आप कितने टास्क कर रहे हैं और आपके टास्क में कितनी गुड परफॉर्मेंस है। उस बेस पे उन्होंने आपका रिव्यू करना होता है, ठीक है, कि और आपको प्रमोशंस देनी होती हैं और आपकी चीज़ों को अपग्रेड करना होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ बोनस और इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन। तो ये जीरा, कैनबैन, ट्रेलो, बेस कैम्प, ये सारे के सारे जो है बोर्ड हैं उसके, इसको आप कस्टमाइज बोर्ड बोल सकते हैं, जिसपे टास्क और आपके टीम जो है टास्क डिलीवरी करते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग कितनी दिन की है? 8 वीक्स है और 2 मंथ की है। ये वीकेंड बेस्ड है बेसिकली, सैटरडे और संडे। और इसकी टाइम्स क्या होंगी? 17 सितंबर आई गेस, आई थिंक। नहीं वो टाइमिंग स्टार्ट और एंड टाइमिंग लाइक सैटरडे 11 AM से 3 PM होगी। ओके वो जूमिंग लिंक कहाँ पे मिलेगा फिर? सॉरी, ट्रेनिंग को ज्वाइन करना, जूम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है कुछ? जी, ये आपको सारी चीज़ें ना इंशाल्लाह आई थिंक 17 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो एवरीडे जो भी ट्रेनिंग डिलीवर होगी उसका जूम लिंक, उसकी रिकॉर्डिंग, और आपको लाइक हफ्ते इतवार जो भी ट्रेनिंग डिलीवर होगी उसकी कंप्लीट 5 डेज के लिए आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने के लिए प्रैक्टिकल चीज़ों का भी दिया जाएगा, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ करेगा, और उनका जब तक प्रीवियस चीज़ें कवर नहीं होंगी तो नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। और हर वीकेंड पे जो वर्क दिया जाएगा, आपके पास 5 डेज होंगे उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। लेट मी ऐड मैम, बेसिकली हम लोगों का ना LMS है डाइस का, LMS के ऊपर आपका अकाउंट बन जाता है, आप वहाँ से ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। जूम के ऊपर ही लाइव सेशन ही होता है, लेकिन LMS के थ्रू होता है। ड्यूरिंग द कोर्स आपके सारे स्टैट्स LMS पे ही चल रहे होते हैं, और आपकी रिकॉर्डिंग भी उस पर अपलोड होती हैं, लेक्चर्स वगैरह भी उसी पे अपलोड हो रहे होते हैं। कोई आपको इश्यूज वगैरह उसमें टेक्निकल असिस्टेंस भी होती है, और LMS की एक्सेस आपके पास विद इन 1 year रहती है। Okay, means we will be move with your DICE analytics LMS, right? तो उसमें जो पर्सन्स होंगे अटेंडीज, उनके भी बकायदा डेफिनेटली स्टूडेंट पोर्टल्स होंगे। जी बिल्कुल, LMS एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हम लोगों का पोर्टल है, जिसके ऊपर बेसिकली स्टूडेंट्स जब इनरोल करेंगे तो उनका अकाउंट बन जाएगा और वहां से ही वो क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे। जी, ओके, थैंक यू।
Ma'am, do you have anything left? I don't have anything. I'm just waiting for the candidates. If someone has any question, I'm available to answer. Okay. If you guys have any questions, you can ask now. I think no questions from the audience. All right. Thank you so much, Ma'am Nahid. It was a great webinar, a great session with you. Thank you so much, everyone, for joining us. You guys can register yourself as mentioned in the link, or you can contact us through our website. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.